So, hello, good evening, dear students. Dear students, this is the third lecture on poverty. I think first two I uploaded, and I'm sure that you are going through it. So this is the third and hopefully last lecture. I'll try to be a bit faster, doesn't it? So I think we on that particular day, the second video I told you about various reasons regarding unemployment and what is basically GDP, how GDP is different from GNP, all that we discussed. Okay, so today we'll start with chronic unemployment. What is chronic unemployment? This particular word you must be familiar. Capital deficiency leads to lower. You should understand this particular whole cycle. Capital deficiency. When we talk about capital, that means what? Money, funds, as well as the machinery. Capital deficiency lead to lower economic growth. Okay, accumulation of capital points to a rise in production capacity of a nation. If you have great sophisticated capital, that tends to increase the production capacity of a nation. Unfortunately, capital stock and capital formation continues to be highly deficient in a country like India, and because of that there is low production. If there is low capital, lack of capital, it will lead to low production capacity, which further leads to low level of employment, and which further will give rise to poverty, perpetual poverty, and this particular loop will continue, one thing generating another thing. Okay, so indirectly or directly, lack of capital formation would lead to what we say, it would lead to poverty. Got it? Capital deficiency would lead to poverty. Okay, and एक और problem India के अंदर बहुत major है, and that is lack of able entrepreneurs. When we talk about entrepreneurs, that means the traders, or if you talk about traders or businessman. So that particular entrepreneurial spirit is lacking in India. All the Indians educated ones, they want white collar jobs, isn't it? They don't want blue collar jobs, or they don't want to become entrepreneur. They want to work for others, isn't it? And that is the reason why a sort of panic is created, or sort of bafflement, confusion is the lack of able entrepreneurs. Because to become an entrepreneur you require what? Risk factor is lacking in Indian to some extent, not all are there. And then outdated social institution, isn't it? For example, caste system, joint family system, homesickness, certain traditions and instructions obstruct dynamic changes. Okay, you see, try to understand, the only thing constant in the world is change. Okay, but we Indian love to maintain the status quo, isn't it? We don't want, we want, don't want to change. Okay, and these are the things: caste system, joint family system, homesickness, which is also called as nostalgia, certain traditions and instructions, they chain us. Okay, and we are not able to get rid of this chain. Okay, so this particular chain is there, and we are not able to get rid of this particular chain. Okay, so the dynamic changes are not there because of the social evils. Similarly, lack of infrastructure, that means uh, uh, when we talk about infrastructure, actually infrastructure here means what? Lack of infrastructure, energy, transport. Okay, so these are the uh, actually India is known for this particular improper infrastructure, whether it is social infrastructure or the economic infrastructure, दोनों हमारे सही नहीं है. Energy, transport, doesn't it, communication are vital components of economic structure, as well as education, health and housing services. ये किस चीज़ के हैं? ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो दोनों चीज़ में हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इफ बहुत मजबूत होगा, इट विल गिव राइज टू दिस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है, ठीक है. सो दोनों चीज़ में हम लैक कर रहे हैं. पावर्टी, ठीक है ना, पावर्टी विथ रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये हम पावर्टी किस किस तरह से हो रही है इंडिया के अंदर? एक जो है द रिफ्ट विच इज़ देयर बिटवीन द रिच एंड द पुअर, द जिसको कहते हैं काजम खाई, जो है
किसके बीच में, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती ही जा रही है, isn't it? Why? Because there is unequal distribution of wealth, haves and have not, जिनको कहते हैं the rich are getting richer and poor they are getting poorer. Okay, why? Because unequal distribution of income. जो बहुत पैसे वाले हैं उनके लिए पैसा और पैसे को खींचेगा, बट जो गरीब है बेचारा, उसके पास अगर कुछ खाने को नहीं है तो और he will be thrown into poverty, isn't it? More he will become poor and this will continue. गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है? गवर्नमेंट ट्राइज टू मॉडरेट इनइक्वालिटी थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अदर मेजर। और सरकार कुछ नहीं कर रही, हम ये नहीं कह सकते। गवर्नमेंट इट ऑल्सो ट्राइज टू इट्स बेस्ट, ओके, कि भाई अमीरों को टैक्स करना, गवर्नमेंट ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट टू टैक्स द रिच पीपल and whatever revenue is collected, that particular revenue is used in poverty alleviation programs to give subsidies to the poor or to, doesn't it, to soothe them or to relieve their pain regarding poverty, ठीक है ना? वो लेकिन वो हो नहीं पाता। Why? Because there are cases of tax evasion, टैक्स चोरी के मामले भी बहुत पड़ते हैं, doesn't it? और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता हर चीज़ का। गवर्नमेंट अगर कोशिश भी करती है पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की, तो जो होता है करप्शन इज देयर एट डिफरेंट लेवल्स, ओके। 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता है तो 1 रुपया 5 पैसे बन जाता है, ठीक है। गॉट इट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। टॉप, और एक इंडिया के अंदर जो हकीकत है वो ये है कि टॉप 20% ऑफ द पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट 53% ऑफ टोटल इनकम, वेयर एज बॉटम 40% पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट ओनली 15.3%। इससे आपको अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि कितनी इनइक्वालिटी। ये तो सरकारी आंकड़ा है कि भाई टॉप 20% दे हैव 53% ऑफ द वेल्थ, वेयर बॉटम 40% पॉपुलेशन जो है उनके पास वो जो है ओनली दे क्रिएट 15.3% ऑफ इनकम। मतलब जो सरकारी वेल्थ जो टॉप की 20% है उनके पास नेशनल इनकम का कितना है, 53%, ओके। और जो नीचे 40% हैं, जो 40% भी क्या 20% की बात कर लो, वो 15.3% है। अब ये तो एक सरकारी आंकड़ा हुआ। कुछ लोग कहते हैं जो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई जो इंडिया के अंदर ये हो रहा है कि 20% ऑफ द टॉप बिजनेसमैन और बिजनेस हाउसेज दे अप्रोप्रिएट 80% ऑफ द इनकम, नेशनल इनकम उनकी वजह से आ रही। 20% का तो हाल बुरा है, ठीक है ना? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टॉप 20% मतलब जो नीचे के 80% है वो सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना? और एक और चीज़, 1536 कंपनीज आर कंट्रोल्ड बाय 75 फैमिलीज। अगर जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं वो सिर्फ 75 हैं इंडिया के अंदर, टॉप 1, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में क्रैम डे ला क्रैम फैमिलीज कहा जाता है, टॉप ऑफ द टॉप। वो कितना उनके पास कंपनीज कितनी हैं? टॉप 1536 कंपनीज। तो इससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है। गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजिंग बिकॉज रिच हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी टू जनरेट स्टिल हायर इनकम। ये कि एक फंडा है नेचुरल। पैसा है आपके पास, पैसा पैसे को खींचेगा। 10 लाख रुपए आज अगर आपने इन्वेस्ट करके कोई ज़मीन खरीदी, ज़मीन का टुकड़ा, 5 साल बाद वही 10 लाख बन जाएंगे आपके 80 लाख, ओके। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। विथ ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ द रिच आर एबल टू बिल्ड फॉर्चून फर्दर। वो अपना एक फॉर्चून बना लेते हैं, मैंने समझा दिया ना। व्हाट आर द मेजर्स टू रिमूव पावर्टी? किस तरह से हम गरीबी को कम कर सकते हैं? व्हाट आर द मेजर्स टू रिमूव पावर्टी? कंबैटिंग पावर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। अब अगर जीडीपी को अगर आप बढ़ाओगे तो कुछ हद तक समस्या शायद हल हो जाएगी। कॉम्बैटिंग मतलब फाइटिंग। अब जीडीपी भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मसला होता है, ठीक है ना, कि सिर्फ जीडीपी आपने बढ़ा दी तो उससे गरीबी तो दूर नहीं हो सकती। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम अगर जीडीपी बढ़ाएंगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा। तो एक तो मेजर ये हो गया कॉम्बैटिंग पावर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, कॉम्बैटिंग पावर्टी थ्रू इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब आपने जीडीपी बढ़ा दी, अब जीडीपी बढ़ा देने के बाद जो जीडीपी का जो फल होता है जिसको फ्रूट कहते हैं, वो फ्रूट अगर गरीबों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा ना। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉम्बैटिंग पावर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल विच इज कॉम्बैटिंग पावर्टी थ्रू इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो खाई है उसको बांटना है अमीरों गरीबों के भी। कॉम्बैटिंग पावर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन कंट्रोल का, कि जो भी गवर्नमेंट एफर्ट करती है हर साल, दैट इज न्यूट्रलाइज बाय द इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये व्हाट यू से growth of population is inversely proportional to the development. More population, less growth; less population, more growth.
ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट बहुत कम है। चाइना भी अब कहते हैं कि वो उनका पॉपुलेशन रेट कम हो गया है और 20 साल के अंदर इंडिया फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए एक पॉपुलेशन क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई है, उनके लिए क्या है, एक तरह से एसेट है। सो इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी बहुत ज़रूरी है समझे। क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग चीज़ होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग चीज़ होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड थ्रू मॉनेटरी वैल्यू। सब बेसिकली जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिफरेंट थिंग। ओके, बी केयरफुल। इसको अभी टाइम नहीं है, बताऊंगा बाद में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कॉम्बेटिंग पावर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, पहला देखते हैं हम किस तरह से हम फाइट कर सकते हैं अगर जीडीपी बढ़ गई तो। विथ पेस ऑफ जीडीपी, विथ अगर सपोज जीडीपी एक्सेलरेट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेट। अच्छा, जीडीपी का मतलब एक समझो अच्छे था, एक तो होता है जीडीपी और एक होता है एनडीपी और एक होता है जीएनपी और एक होता है एनएनपी। चारों का डिफरेंस आप लोगों सर से और अच्छी तरह समझ लेना। जीडीपी का मतलब होता है कि एक बाउंड्री के अंदर, जैसा अगर अपना यहाँ का इंडिया का देखा तो इंडिया की एक बाउंड्री है, तो दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक बाउंड्री। वहाँ पर जिस चीज़ का प्रोडक्शन होता है मॉनेटरी वैल्यू में, डजंट इट, दैट विल बी कॉल्ड एज जीडीपी। जो भी प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वेदर सर्विस सेक्टर के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू, एग्रीकल्चरल सेक्टर के थ्रू, तो सब मिला के जो होता है उसको कहते हैं ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें कौन कौन आ गए, इंडियन रेसिडेंट्स भी आ गए और नॉन इंडियंस भी आ गए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज वो भी यहाँ पे प्रोडक्शन करी, उसको भी इंक्लूड कर दिया सब कुछ। ठीक है ना, तो अगर जीडीपी बढ़ेगा यहाँ इंडिया के अंदर तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा and more people will find employment. If more employment will be there, more inclusive will be the growth. ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा तो जो ग्रोथ होगी वो इंक्लूसिव हो जाएगी, नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब आप गरीबों को हटा रहे हो, इंक्लूसिव मीन्स यू आर एब्जॉर्बिंग द पुअर पीपल ऑल्सो। तो उनका जो है एक तरह से परचेसिंग पावर बढ़ेगी, पैसा उनके हाथ में आएगा। ठीक है, दूसरा होता है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब भाई जीडीपी आपने बढ़ा दिया, मान लो कुछ डिफेक्ट हो गया, सिर्फ अमीरों को फायदा हो रहा, बढ़ी हुई जीडीपी में तो कोई मतलब नहीं आपका ग्रोथ, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज इंक्लूसिव। तो सबसे सेकंड पॉइंट ये है कि कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डजंट इट। पैसा आ रहा है उसको बराबर बांटना है गरीबों और अमीरों में। वो कैसे होता है, फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर। देखते हैं फिस्कल मेजर क्या है। रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड subsidies. Fiscal measures refers to the policy of टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। टैक्सेशन किसको करना है, टैक्स किस पे लगाना है, अमीरों पे, और सब्सिडीज किसको देना, गरीबों पे। ये एक अगर परफेक्ट वे में चलता है तो कुछ हद तक गरीबी दूर होती है। The government places greater emphasis on a progressive tax system. It implies a higher tax on the rich while the poor are exempted. अच्छा, टैक्स का जो सिस्टम राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है इंडिया के अंदर, टैक्स का इवेशन गॉट इट और नॉट, वो फॉर्म जो भरा जाता था वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। आजकल तो वो जो नया टैक्स सिस्टम आ गया है, जीएसटी आ गया है, गॉट इट। तो जीएसटी भी बहुत लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है वो गरीबों को सब्सिडी देने में करती है, तो दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो द गवर्नमेंट places greater emphasis on a progressive tax। ये बता दिया मैंने। टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज टू सब्सिडाइज परचेसेस फॉर, बट की जगह क्या है यहाँ पे, इसको हाँ फॉर, है ना, फॉर गलती से लिखा गया, फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो पैसा अमीरों से कलेक्ट हो रहा है वो पैसा किसको दिया जाएगा, गरीबों को, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, या उनको कुछ सब्सिडीज दी जाएंगी जिससे उनको राहत मिले। ओके, और गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड टू द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेज, ग्रांट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो प्रोवाइड। देखिए, सरकार की तरफ से ये नहीं कह सकते सरकार कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, रैट टैपिज्म इज देयर, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स आर देयर, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा, तो जो चीज़ गरीबों को मिलना चाहिए वो मिलती नहीं है। So grants are provided to the poor for construction of their houses. Grants for self-employment are also provided. एक ग्रांट मिलता है, अगर आप घर बनाना चाहते हो तो कम दाम पे आप सरकार आपका घर बनवाएगी,
पैसा खुद लगाएगी सरकार, बट ये क्या होता है कभी कभी कि इतना प्रोसीजर लंबा हो जाता है, इतना ज़्यादा पेपर वर्क हो जाता है, तो गवर्नमेंट दैट द पुअर पीपल दे बिकम हेल्पलेस, ओके। एंड देन लेजिस्लेटिव मेजर्स मैंने बता दिया आपको, दे रिफर टू द मिनिमम, सॉरी फिजिकल मेजर्स बताते हैं। लेजिस्लेटिव मेजर क्या है, दे रिफर टू मिनिमम वेजेस एक्ट मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू ऑफर द मिनिमम वेजेस एज पर द नॉर्म। सरकारी रेट, अगर कोई मजदूरी कर रहा है तो उसकी सरकारी रेट फिक्स रहता है कि इससे कम आपको नहीं मिलना चाहिए। भाई इसमें भी बहुत झोल हो जाता है, isn't it? बिकॉज पावर्टी इज परवेसिव इन इंडिया, isn't it? अगर आपको कोई काम नहीं कर रहे हो सरकारी रेट पे, जो आपका ठेकेदार है तो किसी और को लगा देगा। जो 300 की, आप सरकारी रेट मान लीजिए 300 रुपये रोज़ का, तो वो 300 रुपया ठेकेदार बोलेगा मुझे नहीं देना इतना, 100 रुपये दूंगा मैं, तो दूसरा बंदा आ जाएगा जिसको बहुत ज़रूरत है कि बोले चलो मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सफल होता है, नहीं होता है, वी डोंट नो, ठीक है ना। Price floor for the purchase of farm output, minimum stipulated price that must be offered to the farmers for the purchase of their output। सरकार ने वो भी फिक्स कर दिया है कि भाई जो फार्म प्रोड्यूस होता है, फार्म का आउटपुट होता है, जो हार्वेस्ट का आउटपुट होता है, उसके वो भी जो सरकार परचेस करती है एक फिक्स्ड रेट पर जो है परचेस करती है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट की गई है, इसको भी समझाता हूँ मैं। राइट टू एजुकेशन, हर सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में सरकार ने फिक्स कर दिए कोटा कि इतना आपको गरीब को देना है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये है कि जो छोटे स्कूल से वहाँ तो सफल हो गया है, बट जो पॉश स्कूल से वहाँ पर भी सरकार ने फिक्स कर दिया। बट जो बड़े बड़े स्कूल थे उनके नखरे इतने होते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि they are exempted from the fees, but then other what we say expenses, the poor people, they are not able to afford. Got it or not? Means if you talk about the fees, suppose if a particular posh school is there and yearly average fees is suppose 2.5 lakh rupees, so they would be exempted from that, but other type of expenses are lot। 50-60 हज़ार सालाना या 80 हज़ार सालाना वो लोग उठा नहीं पाते, इतने खर्चे होते हैं बड़े बड़े स्कूलों के, इतने कह सकते हो नखरे होते हैं, isn't it? तो वो सीट्स खाली ही जाती हैं गरीबों की, कहाँ, पॉश स्कूल्स में, ठीक है। और एक कॉम्बैटिंग पावर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कॉम्बैटिंग पावर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। एक्चुअली में पर कैपिटा इनकम होता क्या है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन यानी कि आपका डिनोमिनेटर अगर बढ़ता रहेगा तो नेचुरली क्या होगा, आपका पर कैपिटा इनकम घटता चला जाएगा। गॉट इट, 1/2, 1/3, 1/4, isn't it? तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो जो वैल्यू हो रही है ना, फ्रैक्शन की कमी हो रही है ना, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है आपको, तो नेशनल इनकम आपकी बढ़ना चाहिए और पॉपुलेशन आपकी घटना चाहिए रेट, तभी क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और इंडिया के अंदर शायद ये चीज़ अभी हो नहीं रही है, हो नहीं पा रही, ठीक है। अगर ये हो गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, तो काफ़ी फ़ायदे होंगे हमें, पॉवर्टी एलिविएशन कुछ हद तक हो जाएगा। Rate of population participation, that is percentage of labor force gainfully employed, would increase, it would also decrease number of people below poverty line। अच्छा एक और चीज़ है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल जो है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे जवान हो रहे हैं, isn't it? वो they are means every year we are adding to the labor force, and this labor force is not assimilated or it is not at all absorbed, वो खाली ही पड़ी रहती है, कहीं काम मिल गया तो 1 महीने काम कर लिया, 2 महीने कर लिया, तो एक्सेस या जिसको कहते हैं लेबर सरप्लस रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। बट अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया तो वो क्या होगा कि जो लेबर है, मान लो जो एक्सेस लेबर है, दैट एक्सेस लेबर वुड बी एम्प्लॉयड गेनफुली, ठीक है, गॉट इट। एंड उससे क्या होगा कि द दैट पर्टिकुलर इट वुड डिक्रीज नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी क्या होता है हर साल नए नए लोग ऐड हो रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या, लेबर सरप्लस हो रहा है, पढ़ लिख भी नहीं रहे हैं वो, कुछ स्किल भी नहीं है, और अब वो बस मजदूरी कर रहे हैं, ऐसा ना। लेकिन वो मजदूरी भी नहीं मिल पा रही। आप देखिए दो बत्ती एरिया पे कितने लोग खड़े रहते हैं, ऐसा ना, डाट वो जो काला घोड़ा एरिया है वहाँ पे आप मॉर्निंग में जाएंगे तो बहुत सारे सैकड़ों लोग वहाँ पे आपको खड़े हुए मिल जाएंगे, ऐसा ना, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई हमको ले जाए वहाँ हम डेली का काम कर लें, ठीक है ना। तो ये शायद आगे 20 साल बाद ये यहाँ पे आपको अभी 100 लोग दिख रहे हैं तो आपको 20 ही लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन रेट कम हो गया, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, दे वुड बी easily employed,
क्योंकि पॉपुलेशन रेट कम हो गया तो ये एक तरह से लेबर सरप्लस है वो भी कम हो जाएगा, तो जितने भी लोग बचेंगे उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अदर मेथड्स एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर कैसे हो सकते हैं? एग्रीकल्चर शुड बी मैकेनाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, द आउटडेटेड मेथड्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर दे शुड बी अवॉइडेड, शुड बी मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्नाइज, को मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। बेटर सीड्स, मीन्स ऑफ इरीगेशन, केमिकल एंड कंपोजिट फर्टिलाइजर्स मस्ट बी यूज्ड। सीड्स, हाइब्रिड सीड्स जिसको आजकल चल रहा है, मीन्स ऑफ इरीगेशन जो होना चाहिए, क्योंकि इन इंडिया what we say, rainfall is like a gamble, and Indian farmers, they totally depend upon irrigation, isn't it? Sorry, they totally depend on rainfall, and India rainfall is like a gamble, एक साल अच्छी होगी दूसरे साल नहीं हुई, एक जुए की तरह है, isn't it? So means the artificial means of irrigation should be there, okay? Or chemical and composite fertilizer must be used. Small and marginal farmers should be taken care of. इंडिया के अंदर यही प्रॉब्लम है कि जो स्ट्रैटिफिकेशन हर चीज़ का बहुत है, कास्ट के रूप में, है ना, अमीर गरीब के रूप में। अगर आप अमीरी गरीबी को भी देखें तो उसमें भी बहुत स्ट्रैटिफिकेशन है, फार्मर्स में भी स्ट्रैटिफिकेशन है, ओके। अगर यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में जाएंगे आप, देखिए वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स कैसे उन प्रॉस्परस है हरियाणा के, और अगर आप वहाँ चले जाइए कहाँ पे, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो कितने पुअर हैं, समझे। लैंडलेस फार्मर्स शुड बी गिवन लैंड, अब ये शुड भी कह दिया गया, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल इज एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, ओके। प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप्रूवल कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, और एक इन्फ्लेशन रेट को काबू में करना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों नहीं काबू में आ रहा? क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो डिमांड हर चीज़ की बढ़ती जा रही है, समझे। तो जब तक ये पॉपुलेशन इस पे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर विल कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही नहीं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होगी, ठीक है। तो किस तरह से हो सकता है ये? अगर हम अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, when production of food grains and other goods of mass consumption is increased, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। सेकंड, गुड्स ऑफ मास प्रोडक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर थ्रू फेयर प्राइस शॉप, दैट इज राशन शॉप। पहली, मास प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन। प्रॉब्लम इंडिया के अंदर ये है कि अगर प्रोडक्शन हो भी जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता बराबर। कभी कभी ये होता है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया, लेकिन वो मान लीजिए पंजाब में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो हरियाणा, वो छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंच पाएगा, या पंजाब में प्रोडक्शन हो गया, कहीं हो गया तो जो स्टोरेज फैसिलिटी वो प्रॉपर नहीं है, तो कीड़े खा जाते हैं अनाज को, या चूहे खा जाते हैं, समझे। ये प्रॉब्लम एक है, ठीक है। और फिर सरकार ने सोचा चलो बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई तो अब अच्छा गेहूँ हम पहुँचाएंगे कहाँ पे, अनाज पहुँचाएंगे कहाँ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस में। जो राशन की दुकान है वहाँ पे भी करप्शन है ना, तो वहाँ पे गेहूँ पहुँचता तो अच्छा है, लेकिन जब लोगों तक पहुँचता तो घटिया किस्म का अनाज पहुँचता, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे इरेडिकेट करें? थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। पहले आप रूरल एरियाज पे ध्यान दीजिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुड बी इनकरेज्ड इन रूरल एरिया। कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना, वो इनकरेज करना, हैवी इंडस्ट्रीज तो नहीं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि अभी भी 65 से 70% लोग जो हैं गाँवों में ही रहते हैं। और ये तीसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने हमेशा इग्नोर किया है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन मैकोले करके जो था बंदा अंग्रेज, उसकी पद्धति चल रही है। दैट पर्टिकुलर मैथडोलॉजी वी आर यूजिंग। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज अ मस्ट, सो दैट व्हाट हैपन वंस यू leave the school you will have a particular skill, technical skill, so that you can earn your livelihood. वो हमारा यहाँ नहीं होता है ना। schools and colleges they have become like churning machines, churning out what, uneducated youth, educated youth, okay, unemployed youth। आप 12वीं पास कर लो कुछ नहीं हो सकता, कॉलेज कर लीजिए कुछ नहीं हो रहा है, फिर कॉलेज के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वैसे ना, तब जाके कहीं शायद नौकरी लग जाए अगर आप लकी हो गए। तो वी आर द एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रॉट मेथड, ओके, गॉट इट। सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन विल रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और कुछ जो इकोनॉमिक्स में सजेस्ट करते हैं कि भाई आप जो है कैपिटल इंटेंसिव को कम करो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस लेबर आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक झोल है, क्या कि अगर लेबर इंटेंसिव हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर आप डेवलप्ड नेशन जल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन यू हैव टू बिकम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, दैट मीन्स मशीन्स एंड ऑल।
अब मशीन एंड ऑल यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि लेबर ऐसी रह जाएगा, ये बहुत डामाडोल स्थिति हो जाती है कभी कभी, isn't it? फिर भी एट प्रेजेंट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोविजन ऑफ सिविक एम्यूनिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एज वेल एज प्राइमरी एजुकेशन। ये चीज़ें आपकी कंट्रीज में सही नहीं है, इसका मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर है, ठीक है। मुंबई में आप रह रहे हो, आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, मतलब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, ठीक है। अब 50,000 रुपये कमा रहे हो आप, और एक चौल में रह रहे हो क्योंकि आपको कोई अच्छा सा फ्लैट नहीं मिल रहा, खरीदने की भी ताकत नहीं है, 5-5, 10-10 करोड़ के फ्लैट्स हैं वहाँ पे सॉरी। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक चौल में रह रहे हो, 50,000 कमा ज़रूर रहे हो, चौल के 20,000 रुपये दे रहे हो, लेकिन एक कॉमन जो है वॉशरूम है, सुबह से लाइन लगाना पड़ती है आपको, साफ़ पानी नहीं मिल रहा है आपको, तो दैट मीन्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी बैड डिस्पाइट योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ गुड, ठीक है, खाने पीने के हो जाता है, लेकिन आपका रहन सहन जो ठीक नहीं है, ठीक है, गॉट इट। और प्राइमरी एजुकेशन, आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे एजुकेशन जो है वो आप मजबूर हो कि बहुत बड़े पॉश स्कूल में आप भेज नहीं पा रहे हो 50,000 रुपये कमाने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी देयर ऑन बैकवर्ड रीजन, इंडिया इज द लैंड ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी, ठीक है। आप मुंबई को ही देख लीजिए, आप स्टेट्स को कंपेयर मत करिए, मुंबई को, लाइक मुंबई इज लाइक अ पैराडॉक्स, isn't it? On one hand, you see the skyscrapers, the very costly, what we say, uh, cars, people in designer suits, people in designer clothes, isn't it? And that sort of swashbuckling atmosphere over there, isn't it? Glamour, pomp and show, ये एक हाथ पे, ये एक दूसरी मुंबई है, ये बॉम्बे है एक तरह से दिख के लीजिए, और मुंबई क्या है, धारावी। So there is a difference between Mumbai and Bombay. There is a difference between India and भारत, ठीक है। वो धारावाही में जाओगे आप देख लीजिए कैसा स्लम एरिया, द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फर्दर explored, more and more ITI should be opened, isn't it? Where entrepreneurial education loans to be offered, isn't it, at low level of interest, है ना। ये जो ITIs हैं, IIT की बात नहीं, ITIs में क्या होता है, बंदा स्किल सीखता है, ये 12th क्लास से अटैच कर देना चाहिए। तो क्या है, 12th क्लास का पास करेगा बच्चा, कहीं ना कहीं वो अपना एम्प्लॉय हो जाएगा, नहीं तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, उसको कहीं जाके वापस से कोई कॉलेज में फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वो स्किल नहीं रह पाएगी उसके पास, ठीक है। इट शुड बी लिंक्ड। अब ये जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं। इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कुछ को करना पड़ेगा, करप्शन हटाना है आपको, इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, doesn't it? You have to remove the corruption, got it? And you have to give the best quality food items, edible items in this through public distribution systems, okay? अब बात करते हैं measure, इसमें measures adopted by the government to remove poverty and unemployment। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको याद करना है। पहला, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना स्टार्टेड इन अप्रैल 1919 टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरिया। 20 साल हो गए, कोई नहीं रिमूव नहीं हुई पॉवर्टी, ठीक है। इट रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम IRDP एंड व्हाट इज दैट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको इसने रिप्लेस करके ये नई स्कीम आ गई, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। जो पहले ट्रायसम था उसमें भी लोग बेरोजगार रहे, और जो नई स्कीम है इसमें भी बेरोजगार रहे, ठीक है। National Rural Livelihood Mission, that is NRLM scheme, is also called आजीविका स्कीम। ये भी एक स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया गया था? This scheme was implemented in 150 districts in the year 2012-13, where this in 150 districts, people were targeted. दिस स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द कंट्री इन द कमिंग ईयर। पहले 2012-13 में क्या हुआ, सिर्फ 150 डिस्ट्रिक्ट, फिर आने वाले समय में पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट जो थे वो टारगेट किए गए। दिस स्कीम एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रोजगार टू नियरली 90 लाख पीपल। कहा गया था, दावा क्या क्या सरकारी दावे जो होते हैं ऐसे होते हैं कि इस स्कीम के द्वारा 90 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, वो मिला नहीं है अभी तक, ठीक है, गॉट इट। आज की तारीख में ये स्कीम जो है, कौन सी स्कीम, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और आजीविका इज टुडे कॉल्ड एज दीन दयाल अंत्योदय योजना, बट उससे भी फायदा नहीं हो पाया जैसा मिलना चाहिए था। एक है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब देखिए
ये जो नाम है ना, ये नाम बहुत ही बॉम्बास्टिक लग रहे हैं, दे आर वेरी बॉम्बास्टिक, ऐसी योजना वैसी योजना, जैसे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगी पावर्टी, लेकिन हो नहीं पाई इसमें, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1 सितंबर 2001। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम्स वेर इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल योजना। तो संपूर्ण ग्रामीण योजना क्या है, दो तरह की स्कीम्स को मर्ज किया गया। कौन कौन सी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, they were integrated, they are fused together to form the Sampurna Gramin Yojana. And what were the objective? To provide employment opportunities to the surplus worker। भी इसका एक ट्रिक ये है कि अगर ये सारी चीज़ें आ जाए आपके एग्जाम में तो ये तो लिखना ही लिखना, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मार्क्स तो मिल जाएंगे, है ना। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन एंड टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, ये थोड़ी जो थी बहुत फेमस हुई थी। In the year 2001, it was launched aiming at improving the standard of living of the rural people by focusing on health, primary education, drinking water and roads। ये बहुत पॉपुलर भी हुई थी कि फोकस क्या है, रूरल पीपल का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना बाय प्रोवाइडिंग दैम पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल मीन्स द वाटर विच इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है ना, एंड प्रोवाइडिंग हेल्पिंग दैम इन मेकिंग houses, isn't it? That means at subsidized rate, and education provide करना, roads बनाना, ठीक है ना, जो कच्चे रोड है उनको पक्के रोड से जोड़ना। तो 3 प्रोजेक्ट इसमें इन्वॉल्व हुए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये कुछ हद तक सफल भी रही थी। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, ठीक है। अब ये किसके लिए? भाई जो बहुत गरीब है, बिलो पावर्टी लाइन। लेकिन हमारे यहाँ के जो इंडियंस होते हैं वो क्या जुगाड़ू बहुत माने जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जुगाड़ बहुत फेमस है वर्ल्ड में, है ना। तो वो क्या करते हैं, जो बीपीएल के कार्ड हैं, जो बेचारे जो अच्छे भी हैं ना, वो बीपीएल कार्ड बना लेते हैं और जो गरीबों का हक मार लेते हैं। अब वो कार्ड के द्वारा उनके घर बन जाते हैं, जो गरीब है उनके नहीं बन पाते, ठीक है। ये सारे झोल हैं इंडिया के अंदर। जयप्रकाश रोजगार योजना जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना। एक ये रोजगार जो थी योजना थी, है ना, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। ये क्या थी? दिस स्कीम एम टू प्रोवाइड गारंटेड एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द। अब ये गारंटेड देंगे। अब गारंटेड का मतलब ये हुआ कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, मान लीजिए छत्तीसगढ़, झारखंड, अब वो गारंटेड का मतलब हुआ कि 365 दिन में से आपको हम 120 दिन काम देंगे, पूरा साल भर नहीं मिलेगा आपको, 150 दिन, वो भी किसी को मिला किसी को नहीं मिला, ठीक है। तो इसको गारंटेड कहा गया। भाई गारंटेड का मतलब तो ये होता है ना कि 12 महीने आप इंगेज करो। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अब गरीब सिर्फ गाँव में नहीं है, शहर में भी है। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1997। नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी रेडिकेशन प्रोग्राम हैव बीन मर्ज्ड विद द दिस योजना। बहुत कंफ्यूजिंग है, किसको किसके साथ मर्ज कर दिया पता नहीं, इतने सारी स्कीम है, फायदा किसी को नहीं होता था, ठीक है। इसको पढ़ लेना आप। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। अब इसमें क्या, जो शहर में बेचारे बेरोजगार हैं उनको मदद करना। मान लीजिए आपने कभी कभी देखा होगा किसी को, जैसे कोई बंदा है कुछ काम नहीं है तो उसको बोलेंगे भाई तुम रिक्शा चलाओगे, या अगर मुंबई में है तो भाई आपके हम हेल्प कर देंगे, नहीं है टैक्सी आपको मंगवा दे देंगे, हाँ, लोन के द्वारा आप खरीद लीजिए, ठीक है। तो इस तरह की मदद करना। इट इंक्लूड अर्बन सेल्फ एम्प्लॉय, या कोई कॉटेज इंडस्ट्री, घर में पापड़ की फैक्ट्री लगा ली, या जैसे कि जहाँ पे बॉल पॉइंट पेन बनते हैं, वो भी एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री, वो लगवा दी, ठीक है ना। उसके लिए लोन, छोटे अमाउंट का लोन हम आपको दिलवा सकते हैं, गवर्नमेंट की ये स्कीम रहती थी। इट इंक्लूड अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, बस याद कर लेना इसको। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। दिस स्कीम प्रोवाइड लोन ऑफ अप टू ₹1 लाख अनएम्प्लॉयड एंड ₹2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज़। ये भाई हम आपको लोन देंगे, कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन 1 लाख का लोन आपको लेना है, इतना आसानी से मिलेगा नहीं। आधार कार्ड लगाओ, ये लगाओ, फलाना ढिमका, और फिर आपको जिसके पास जाओगे वो भी आपसे थोड़े से मांग रहा है कि 5% मुझे लगेंगे, ये 5,000 मुझे देना पड़ेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ओके, ये भी एक सरकारी था। लघु उद्योग खोलना, मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री विद अ व्यू टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
इसमें सिर्फ आपको याद करना है, कुछ खास बात नहीं समझने लायक। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर, मिनिमम नीड प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द फिफ्थ प्लान। द प्रोग्राम कवर्ड प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, रूरल रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल हाउसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे ना तो हर गांव हिंदुस्तान का जो है इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। कुछ गांव ऐसे हैं अभी भी इंटीरियर्स में जहाँ पे बिजली ही नहीं है। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम जिसको कहते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम्स, ये आप जो है सिर्फ डेटा है, इसको आप बुक में से कर लेना, बुक में दे रखा है। ठीक है, पूरा का पूरा दे रखा है जो आपकी रिफ्रेशर है। ठीक है, बुक में से कर लेना, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट Guarantee Act. Under this act, all those who are willing to undertake unskilled manual work at the minimum wage are offered employment for a minimum period of 100 days. Number of people who benefited from this scheme risen from 6.22 crores to 7.77 crores. We don't know exactly, but ये दावा किया गया है कि भाई जो लेबर वर्क करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार के, उनमें हम आपको गारंटी देते हैं बैकवर्ड रीजन्स में कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट हम आपको दे सकते हैं, 3 महीने के 10 दिन हम आपको एम्प्लॉय कर देंगे। कहा गया कि इससे 6.22 करोड़ से 7.77 करोड़ लोगों का फ़ायदा हुआ है। लेकिन वही बात है कि भाई 100 दिन आपने काम किया, बाकी के दिन क्या करेंगे, फांके करेंगे क्या वो। मुद्रा बैंक, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुद्रा बैंक टू मीट क्रेडिट नीड्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मुद्रा का मतलब होता है पैसा, क्रेडिट देना भाई जिनके पास पैसा नहीं है। अंडर द स्कीम अ माइक्रो एंटरप्राइज इज एंटाइटल्ड लोन अप टू 10 लाख। आपने कोई इंटरप्राइज खोली, एक छोटा सा लघु तो खोला, तो उसके लिए आपको 10 लाख तक का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपको बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट में वो लोन चुकाना है। अब क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के ये सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सफल हुए थे क्या, ये देखते हैं। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज डिक्लाइन फ्रॉम 46% टू 21.9% इन 2011। अगर सरकारी डेटा देखें तो 1972-73 में आधी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे थी। आज की तारीख में जो है 21.9% जो है वो है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी बात है सर, हमने 46 से आधी कर ली, लेकिन हमारी जो है पॉपुलेशन भी बढ़ गई है बहुत। ठीक है, पहले 46% जब थी तो पॉपुलेशन कम थी। ठीक है ना, आज की तारीख में 1,25,000 या 1 करोड़ क्या कहना चाहिए, 130 करोड़ लोग हैं, 130 या 135 करोड़ लोग हैं ना। उनमें से 21.9% जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, मतलब उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने लोग हैं। वेज रेट हैज़ इंक्रीज, ये सब दो ही चीज़ें एक तरह से सफल हुई हैं। फेलियर्स क्या, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेलियर क्या है। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न स्टाफ आर नॉट एफिशिएंट एंड कुड नॉट वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स इन्वॉल्व। देखिए, ऊपर से सरकार कुछ फैसला करती है, 5 ईयर प्लान्स होते हैं कि इतना हम दे रहे हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है प्रॉपर, अलग अलग लेवल से तो गुजरता है, तो करप्शन भी है और कोऑर्डिनेशन नहीं होता है अलग अलग लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी रहती है, टैपिज्म होता है, करप्शन होता है, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स होते हैं। तो वो एक बराबर जहाँ पहुँचना चाहिए पैसा वहाँ नहीं पहुँचता है, बीच में काफ़ी पैसा गायब हो जाता है। करप्ट ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही जिसको कहते हैं, रेड टैपिज्म बहुत खतरनाक है। करप्शन बहुत है इंडिया के अंदर। ठीक है ना। रिमोट एरियाज एंड पुअर हाउस होल्ड लोकेटेड इन द इंटीरियर नेग्लेक्ट, आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो है जो फॉरेस्ट में, जो आपको यकीन नहीं होगा लेकिन फॉरेस्ट में भी लोग रहते हैं आजकल, ऐसा ना, दे टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। और कुछ बैकवर्ड एरियाज ऐसे हैं छत्तीसगढ़ झारखंड के द ट्राइबल पीपल दे आर नेवर गेटिंग एनी फैसिलिटीज। पीपल ऑफ ओडिशा, जैसे कि मैंने बताया था कि ओडिशा में एक ट्राइब है जो बहुत हाईलाइट भी हुई थी, दे आर ईटिंग रैट्स, the rats have entered their food chain and they are eating roti made up of grass। तो बाद में जाके उनको पता लगा कुछ, तो सरकार भी इसको डिनाई कर देती है, बोले नहीं नहीं रोटी वोटी तो है, उनको मज़ा आता चूहे खाने में। तो ये तो हालत है हिंदुस्तान की। ठीक है, तो वो काफ़ी जो इंटीरियर से उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है ना। और फिर दूसरी एक बात भाई, आज की तारीख में भी गरीब आदमी किसको कहा जाएगा, वो द डेफिनेशन इज नॉट क्लियर। डेफिनेशन ऑफ पुअर नॉट क्लियर, एज अ रिजल्ट मैनी नॉन पुअर टेक एडवांटेज ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है ना, किसको आप गरीब कहोगे, और जो बेचारा गरीब है वो इतना अनपढ़ है, इतना सीधा साधा, ही सो गलिबल दैट ही इज
नॉट इन अ पोजिशन टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। दूसरे ले लेते हैं, वो बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं, है ना, वो एडवांटेज ले लेते हैं। जैसे भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, इजंट इट, तो जो बेचारे रियल में सफ़र कर रहा था उनको तो कुछ पैसा नहीं मिला, दूसरों ने अपने कार्ड बनवा लिए और उनको अभी तक पैसा मिलता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बीपीएल कार्ड उन लोगों के बने हुए हैं जो जिनकी स्थिति अच्छी है। जो बेचारा गरीब है वो मारा जा रहा है, उसको बीपीएल कार्ड कहाँ बनवाऊँ, कैसे बनवाऊँ, कुछ मालूम ही नहीं है उसको। Large scale leakage in the delivery packages due to corruption as a result, the poor received only a fragment of the। 1 रुपया अगर ऊपर से फ्लो होता है या फेंका जाता है सरकार की तरफ से, वो इट गोज थ्रू वेरियस चैनल्स एंड ड्यू टू करप्शन at when it reaches to the lowest level, that when it reaches to the target group, it becomes 5 पैसे, 5 पैसे बचते हैं 1 रुपये से गिरते गिरते, ठीक है। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वेयर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स विच लैक पीपल्स पार्टिसिपेशन। अच्छा, पूरा का पूरा ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है ना, ये सरकारी अफसरों पर डिपेंड रहता है, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रहता है इसमें कुछ भी। तो नेचुरली वो लोग अपनी मक्कारी करते हैं। द पीएपी प्रोग्राम नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, पीपल वर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इनिशिएटिव। अब गवर्नमेंट कोशिश बहुत करती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि सरकार ने एक्चुअली 2 चीज़ें समानांतर चलाई, पैरेलल, और शायद उन दोनों को फ्यूज़ नहीं कर पाई। एक था डेवलपमेंट प्रोग्राम कि भाई कंट्री को बहुत आगे तक ले जाना, नेशनल इनकम बनाना, ये करना है वो करना है, वो एक अपना पैरेलल चलता रहा। और फिर दूसरा गरीबों का अलग प्रोग्राम चलता रहा। अब ये दोनों को अगर मर्ज कर देती, वो डायरेक्टली लिंक कर देती, तो जो यहाँ पे डेवलपमेंट होता उसको डायरेक्टली फ़ायदा किसको, पुअर लोगों को मिल जाता। तो ये नहीं हो पाया। फिर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बहुत चला, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस पीपल वर नॉट फाइंडिंग, पीपल वर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। जैसे एक अटल योजना का मैं एग्जांपल देता हूँ, श्रीमान नरेंद्र मोदी ने ये स्टार्ट किया था, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री। अब अटल योजना के तहत दिया था कि भाई आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा और 40 साल की उम्र तक, आप अगर आपकी 40 साल की उम्र हो जाती है तब तक देना है आपको, या फिर शायद मुझे बराबर ध्यान नहीं, 40 साल के अगर आप हो गए हो तो आप कुछ अमाउंट दीजिए, और अब जब 60 साल के हो जाओगे तो हर महीने आपको 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी तो बिग अमाउंट, आपने 60 साल कंप्लीट कर लिए। तो ये स्कीम शायद एक पर क्या क्या एज से स्टार्ट हो रही तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 40 साल तक का था। तो 40 साल की एज वाला ही इसको यूज़ कर सकता है। तो अगर आपकी 40 साल से कम है तो आप कुछ अमाउंट दीजिए हर महीने का, एंड द गवर्नमेंट विल गिव यू 5,000 रुपीज़ पर मंथ वंस यू अटेंड द एज लेवल ऑफ 60 प्लस जैसे ही हो गए। अब किसी को नहीं मालूम कहाँ मिलेगा ये फॉर्म, डजंट, दे आर नॉट अवेयर। अगर वो बेचारा गरीब जाता भी बैंक में या कहीं पे तो उसको फटकार के भगा दिया जाता है, डजंट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस, ठीक है ना। और कुछ लोग जो ना कुछ जुगाड़ करके उसको भी ले लिया, जो अच्छे हैं, संपन्न हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। तो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इनिशिएटिव्स द प्रॉब्लम्स वर देयर। तो आज इतना, ये पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आई होप आई हैव एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। प्लीज़ गो थ्रू इट, और जब भी आपको टाइम मिले इन चैप्टर्स को आप समझिए, कोशिश कीजिए थोड़ा